الف لیلا الف لیلا الف لیلا الف لیلا الف لیلا. ہر شب نئی کہانی دلچسپ ہے بیانی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن نہ ہو پرانی. پریوں کو جیت لائے جنوں کو بھی ہرائے انسان میں وہ طاقت سب پہ کرے حکومت. الف لیلا بغداد کا مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید ایک ایسا انسانیت پسند حکمراں تھا جو اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کو بھیس بدل کر اپنے شہر گاؤں اور گلیوں میں جایا کرتا تھا. اس طرح خوشحال اور جگمگاتے ہوئے بغداد کے الف لیلوی دن اور راتوں سے بہت سی عجیب و غریب حیرت انگیز داستانوں نے جنم لیا. ایک دن بھیس بدلے ہوئے خلیفہ ہارون رشید ایک گلی سے گزر رہا تھا. صادقہ ہمیں اندر جانے دے. نہیں، اندر نہیں جا سکتے. اب کیا ہوگا؟ گھبراؤ نہیں بشرا. صادقہ ہمیں اندر جانے دے. نہیں، نہیں جا سکتے. ہمیں جانے دے. یہ میرے شوہر کا گھر ہے. یہ میرے بھی شوہر کا گھر ہے. تیرا شوہر تو یہ آج بنا ہے. میری شادی تو اس سے 5 سال پہلے ہوئی تھی. کیا تو نہیں جانتی؟ 4 بیٹیاں ہیں میری اس سے. ارے ہٹ، تماشا نہ بنا. ہمیں اندر جانے دے. ہمیں ہمارے گھر میں جانے دو صادقہ. اگر تم گھر کے اندر گئے تو میں بغداد کے عادل خلیفہ ہارون رشید کے پاس فریاد لے کر جاؤں گی. میں تمہیں وہاں تک جانے نہیں دوں گا. میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، فریاد کروں گی. ارے تیری فریاد سننے کے لیے ان کے پاس وقت کہاں ہے؟ وہ بہت ہی مصروف حکمراں ہیں. تیری فضول باتیں سن کر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. ارے چھوڑ. میں اپنی جان دے دوں گی اور تیری جان لے لوں گی، مگر تجھے اندر نہیں جانے دوں گی. سمجھی نا؟ میں تجھے اندر نہیں جانے دوں گی. میں تجھے اس گھر میں نہیں گھسنے دوں گی. تو اس گھر میں نہیں آ سکتی. میں تجھے اس میں نہیں جانے دوں گی. میں تجھے نہیں جانے دوں گی. رک جاؤ. میں کہتا رک جاؤ. تم لوگ مت لڑو آپس میں. کون ہو تم؟ میں امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید کا ایک ادنا خادم ہوں. انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سب دربار میں حاضر ہو جاؤ اور جھگڑے کی وجہ بیان کرو. بیان کر فریادی زوجہ رفیق. بیان کر. رفیق اور بشرا، تمہیں بھی سچائی بیان کرنے کی اجازت ہے. آخر اس لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ اس جھگڑے کی بنیاد ہے دوسری شادی. میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. امیر المومنین. امیر المومنین، ہمارے مذہب اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے. مگر کن حالات میں دوسری شادی کی اجازت دی ہے؟ اگر عورت بانجھ ہو یا بچہ پیدا کرنے کے لائق نہ ہو یا پھر مسلسل ہمیشہ بیمار رہتی ہو. اور دوسری شادی کرنے کے لیے اگر پہلی بیوی اجازت دے تبھی شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے. کیا تم نے اپنی دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لی تھی؟ جی نہیں. تو پھر تم گنہگار ہو. تم نے اپنی پہلی بیوی پر ظلم کیا ہے اور مذہب اسلام کو بدنام کیا ہے. مگر اس میں میرا کیا قصور ہے امیر المومنین؟ قصور ہے حضور، قصور ہے، بہت بڑا قصور ہے. یہ بھی میرے خاوند کے گناہ میں برابر کی شریک ہے. تم نے یا تمہارے ماں باپ نے مجھ سے آ کر
पूछा मुझसे आकर कि मैंने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत दी है या नहीं? और अब ये जुल्म मैं बर्दाश्त कर रही हूँ अमीरुल मोमिनीन। तुम्हारा इल्जाम सही है मजलूम सादिका। आखिर तुमने दूसरी शादी क्यों की? क्योंकि इस बीवी से मेरी 4 लड़कियां पैदा हुई, इससे कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। बेटा पैदा करना औरत के इख्तियार में नहीं है, इसका जिम्मेदार भी मर्द है। क्यों तबीब हकीम हाजिक और मसीहुज्जमा, आपका क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल सही फरमाया हुजूर। तिबो हिकमत की बरसों की तहकीक के बाद मुहक्किक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मर्द का जो मादा जिसे कि हमल करार पाता है, उसमें जिस किस्म के जरसोम ज्यादा होते हैं, बच्चा वैसा ही पैदा होता है। हुजूर, अल्लाह का जो निजाम है वो बिल्कुल सही है। बेटियां भी तो इंसान ही होती हैं। अल्लाह की कुदरत को निशाना बनाना मर्द के किरदार और ईमान की कमजोरी है। मेरे शौहर अपनी बेटियों को ना अच्छा खाने को देते हैं, ना अच्छा पहनने को देते हैं। वो इन्हें बोझ समझते हैं, वो इनसे नफरत करते हैं। तौबाह नऊजुबिल्लाह, अल्लाह तुम्हारी अक्ल पर रहम करे। बेटी से नफरत करके तुम जहन्नुम में अपनी जगह बना रहे हो। ऐ गुमराह पिदर, बेटी तो अल्लाह की रहमत और रसूलुल्लाह का सलाम है। कयामत के दिन औलाद को बाप के नाम से नहीं, माँ के नाम से पुकारा जाएगा। कितना बड़ा दर्जा है औरत का। माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। ये दुनिया औरत के लिए ही बनाई गई है। औरत ने ही बड़े बड़े पैगंबरों को पैदा किया। बड़े बड़े वली अल्लाह, दरवेश, कौम के रहनुमा और मुजाहिदों ने माँ की गोद में ही परवरिश पाई है। जिन कौमों में औरतों को तड़पाया गया, जलील किया गया, वो कौमें भी जलील होकर तबाह हो गईं। दूसरों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हें भी एक औरत ने पैदा किया है, और वो औरत भी कभी किसी की बेटी थी। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज तक मैं बेटी को एक बोझ और फकीर समझता रहा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बता दिया कि बेटी का दर्जा क्या होता है। मेरी बच्ची, मैं आज तक इन पर जुल्म करता रहा, इन्हें रुलाता रहा, इन्हें कभी प्यार से नहीं देखा। मेरी बच्चियां, मुझे माफ कर दो। बेटियां तो बड़ी मासूम होती हैं। उनकी छोटी छोटी बातों का, उनकी जरूरतों का, उनके अरमानों का माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। अफसोस तो यह है कि औरत को खुदगर्ज मर्द ने अपना मोहताज बना रखा है। ये बेटियां बचपन में माँ बाप के सहारे पर, जवानी में शौहर के आसरे पर और बुढ़ापे में अपनी औलाद के रहमो करम पर बेबसी की जिंदगी गुजारती हैं। इसलिए मैके की मेहमान मुसाफिर ये बेटियां अपने ससुराल पहुंचने तक खिदमत ही खिदमत करती रहती हैं। इसलिए अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, इल्म और हुनर सिखाओ, ताकि वो मर्द की मोहताज न रहें और बेसहारा जिंदगी होने पर इज्जत की रोटी खा सकें। याद रखो, बेटों से ज्यादा बेटियां ही माँ बाप से मोहब्बत करती हैं। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुआफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मुआफी मांग। अपनी मजलूम बीवी और मासूम बेटियों से मुआफी मांग और जा अपनी बेटियों की बेटों की तरह परवरिश कर। ये हुक्मरां खलीफा सिर्फ तख्त पर बैठकर हुकूमती नहीं करता, बल्कि एक मुशफिक बाप, एक मजहबी आलिम
एक रोशन दिमाग उस्ताद की तरह अपनी रियाया के मसाइल में दिलचस्पी लेता है। सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं लेता, उनके मसाइल हल करता है और जीने का सलीका सिखाता है। ये गरीब और अमीर दोनों का हमदर्द है। ये सुना है कि खलीफा हारून रशीद की बेगम आलिया जुबैदा को उनसे बड़ी शिकायत है कि वो उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारती। ताज्जुब है। हुजूर अनवर, आज हमारी तबीयत ये कि हम आपके साथ उस नहर के किनारे चहलकदमी करें जो आपने हमारे लिए नहर जुबैदा बनवाई है। यकीनन हमें बहुत ही खुशी होती बेगम आलिया, लेकिन आज आप हमें मुआफ फरमाएं। शाम होने वाली है और हमें अपना फर्ज अदा करने के लिए महल के बाहर जाना होगा। आप जैसे फर्जशनास शौहर की बीवी होना तो हमारे लिए बाइसे फख्र है, और ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि जो वक्त बीवी के साथ गुजारने के लिए होता है वो भी आप अपनी रियाया की भलाई और खिदमत में गुजारते हैं। इसके लिए तो हम वाकई आपके एहसानमंद हैं बेगम, जो ये कहकर आपने हमारी हौसला अफजाई की है। वाकई अगर शरीक हयात बीवी शौहर के जज्बात और उसके कामों में शरीक हो तो शौहर अपने नेक मकसद में जरूर कामयाब होता है। वक्त हो चला है मेरे सरताज, आप जाइए, देर हो रही है। न जाने कितने मौसम गुजर गए हैं, लेकिन हम आपकी सैरो तफरीह की ख्वाहिश पूरी न कर सके। वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं बेगम, खुदारा हमें मुआफ कर दें। नहीं नहीं, मुआफी मांगकर इस कनीज को शर्मिंदा न करें मेरे सरताज। जब बीवी अपने शौहर की हर ख्वाहिश को अपनी खुशी बना लेती है तो उसे किसी बात का अफसोस नहीं होता, और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं मेरे सरताज कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते आप उन तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे सरताज। चलिए वजीर आजम। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो, मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कोई फकीर को खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मुझे कोई खाना खिला दो, अल्लाह के नाम पर कोई। दीनार, 1 दीनार, वो भी सोने का। शुक्रिया ऐ मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुझे खुश रखे। जाओ बाबा, नान भाई की दुकान पर जाओ और जो दिल चाहे वो खरीद कर खाओ। खूब पेट भर कर खाना खाना। शुक्रिया है मेरे सखी, तूने मेरा कितना ख्याल रखा कि तूने मुझे सोने का 1 दीनार दिया। तू चाहता तो चांदी का 1 दिरहम भी दे सकता था, मगर तू जानता है कि मैं 1 दीनार लेकर अपनी मनपसंद का खाना अच्छे से खाऊंगा, और इसमें से जो रकम बचेगी वो मैं बचा कर रखूं ताकि मैं आइंदा भी भूखा न रह सकूं, पेट भरकर खाना खा सकूं। शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरा शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा न कर। शुक्रिया तो उस अल्लाह का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरी खिदमत कर सकूं। जाओ बाबा और जाकर पेट भरकर खाना खाओ और उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हाँ जाता हूं, मगर खाना खाने से पहले मेरी एक शर्त है। तू मानेगा ना उस शर्त को? हाँ? शर्त? कैसी शर्त? ये कोड़ा ले और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। 3। जब तू 3 कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। क्या तू पागल है नाबीना फकीर? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं पूरा होश हवास में हूं। ये कोड़ा ले और इस पीठ पर मुझे 3 कोड़े मार। ले, जिसने मुझे भीख दी है, जब वो मुझे कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। मैं अपने हाथों से ये जुल्म नहीं कर सकता। जाओ बाबा और जाकर खाना खाओ। तो भी ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाओ बाबा, तुम हमें परेशान कर रहे हो। अरे परेशान तो तू कर रहा है मुझे। ये ले कोड़ा और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। रहम कर, मुझ भूखे पर रहम कर। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। नहीं, तू नहीं मारेगा कोड़े? ठीक है, फिर अपना 1 दिनार भी ले ले। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये दिनार। अल्लाह के नाम पर मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ वज़ीर आज़म। कोई खाना खिला दो। इस फकीर की भूख, इसकी पुकार, इसकी फरियाद खाना खिला दो। मैं तो मैं सुन सकता हूँ और नहीं देख सकता हूँ। नूर वालों, मुझ बेनूर को कोई खाना खिला दो। तरस खा मुझ बेनूर पे, कोई खाना खिला दो। इस अंधे भूखे फकीर को मारने के लिए मेरे हाथ कैसे उठ सकते हैं? मर जाऊंगा। न तो मैं इसे कोड़े मार सकता हूँ और न ही मैं इसकी भूख मिटा सकता हूँ। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कोई खाना खिला दो। या अल्लाह, तू मेरी नेकी और सब्र का कैसा इम्तिहान ले रहा है। रहम कर मुझ पर और रहम कर इस बूढ़े फकीर पर। या अल्लाह, कोई खाना खिला दो मुझे। अरे बाबा, 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 उठो बाबा। बाबा, कौन हो तुम? मैं एक तालिबे इल्म हूँ। बगदाद में जो कुतुबखाना है, वहाँ किताबें पढ़ने के लिए आया हूँ। अरे तुम वही हो ना जिसने मुझे सोने का दिनार दिया था? है तालिबे इल्म, इस बगदाद शहर में तुझे इल्म तो मिल जाएगा, मगर मुझ भूखे फकीर को रोटी नहीं मिलेगी। रोटी नहीं मिलेगी मुझ भूखे फकीर को। जरूर नहीं मिलेगी। अल्लाह के बेशुमार नेमतों से मालामाल बगदाद शहर में कोई भूखा नहीं मर सकता। उठ ऐ जिद्दी फकीर, मैं अपने इन बेगुनाह हाथों को गुनहगार बनाऊंगा। मैं तुझे कोड़े मारूंगा और तुझे खाना खिलाऊंगा। तो तू मुझे कोड़े मारेगा? शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोड़ा ले और मेरी इस पीठ पर 3 कोड़े मार। ले मार कोड़े। या अल्लाह, मुझे मुआफ करना। मार,
जोर से कोड़े मार, तभी मैं खाना खाऊंगा। मार। या अल्लाह, मेरी तौबा है। अल्लाह मुझे मुआफ करना। मार, दूसरा कोड़ा मार। मार मेरे नेक नफस मददगार, मार। तीसरा कोड़ा मार, जल्दी मार। अल्लाह, अब वो दीनार दे दे और मेरा कोड़ा भी। अब मैं पेट भरकर आज खाना खाऊंगा। दे मेरे नेक मददगार, और वो कोड़ा भी दे। आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। पेट भरकर खाना खाऊंगा मैं। पेट भरकर खाना खाऊंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज इस भूखे फकीर को खाना खिला दिया। 3 दिन लगे मुझे मेहनत की रोटी खाने के लिए। या अल्लाह, और मेरे उस मददगार की भी मदद करना। उस नेक दिल इंसान को हमेशा अच्छा रखना, उसके दिल की हर मुराद पूरी करना, इतना अजीज इंसान बनाना कि रहती दुनिया तक उसका नाम रोशन रहे।